Dear students, good morning. So today we will continue chapter first. आज हम लोग चैप्टर फर्स्ट को कंटिन्यू करेंगे। तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था yesterday we have discussed, कल हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था that one morning friends, a poor student got up very early in the morning and he was in great dread of scolding by M. Hamel because M. Hamel had given him to learn the rules of participle and he didn't know even a single word. So at first, in place of going to school, he decided to go to the edge of the forest and join the chirping of the birds. Then he decided to come back to the open field, back to the sawmill and enjoy the drilling of Persian soldiers because all these things were much more tempting than the rules of participle. But he had a strength that resisted all these ideas and ultimately he decided to go to school. But when he was on the way to the school, what did he saw at the town hall? At the town hall, he saw a great crowd in front of bulletin board. And as soon as he saw the crowd, he understood there must be some bad news. Why? Because since last 2 years, he was getting all the bad news from there. So without stopping, he thought what should be the matter now. But as soon as he passed in front of the bulletin board, he was called after by Mr. Watcher, a blacksmith. And he asked him, why are you going so fast, Bob? There's a plenty of time in your school. He knew well that he was already late. He was simply making fun of him. So without stopping there, he came to the M. Hamel's little garden. And usually when the school started, there was a lot of noise. The noise was created by opening and closing of that door, by repeating their lessons in unison, and the teacher's ruler rapping on the table. But on that day, it was also silent, just like Sunday morning. He said that I was completely dependent on the commotion of the class just to get in without being seen. कि क्लास में जाने के लिए मैं पूरी तरीके से क्लास के एटमॉस्फेयर पर डिपेंड कर रहा था. But that day it was just like Sunday morning, so he had to open the door, come in front of everybody, and he was expecting that he would be scolding, but nothing happened. Hamel spoke to him in a very kind and gentle tone. Come, little friend, just go and take your seat. We were beginning without you. So he went there, took his seat, and after some time when he looked up, he was surprised. तो पहला चीज़ किससे सरप्राइज हुआ था? बाय द ड्रेसिंग सेंस ऑफ एम हेमिल. सेकेंड, by the atmosphere of the classroom, and third thing that surprised him most was the presence of blazers on the back benches that were always empty. And then M. Hamel addressed that today he got one order from Berlin, and according to that order from today in all the schools of Alsace and Lorraine only German language would be taught. कि आज से केवल कौन सी लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी? जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी. एंड योर जर्मन टीचर वुड कम टुमारो. आपका जो जर्मन लैंग्वेज का टीचर है वो कल आएगा, और इसीलिए आप सबको क्या है, बहुत ही ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ना है. यहाँ तक हम लोगों ने कल किया हुआ था. अब इसके आगे से हम लोग आज डिस्कस करेंगे. तो अब यहाँ से व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी. व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स. थंडर क्लैप का मतलब व्हाट अ शॉकिंग न्यूज़ इट वाज फॉर मी. सो लगता है मेरे ऊपर बिजली गिर गई. व्हेन आई केम टू नो कि इट वाज माय फ्रेंच लास्ट फ्रेंच लेसन, आई वाज कम्प्लीटली शॉक्ड कि ये कैसे हो सकता है. ओह, द रैचेस, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल. सो नाउ ही अंडरस्टूड व्हाई देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड. उसे समझ में आ गया बुलेटिन बोर्ड के बाहर भीड़ क्यों होती है. तो उसने कहा ओह द रैचेज, अच्छा तो दुष्टों ने ये न्यूज़ लगाई हुई थी बुलेटिन बोर्ड पर, इसीलिए वहाँ पर इतना क्राउड था. एंड ही था माई लास्ट फ्रेंच लेसन. वहाँ उसने कहा ओह द लेसन विच आई एम गोइंग टू गेट टुडे इज़ माई लास्ट फ्रेंच लेसन. आज जो मैं लेसन पढ़ने वाला हूँ ये फ्रेंच लैंग्वेज का मेरा लास्ट लेसन है. वाई? आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट. अरे मुझे तो अभी अच्छे से फ्रेंच लैंग्वेज लिखनी भी नहीं आती, ये कैसे हो सकता है. आई शुड नेवर लर्न एनी मोर. इसका मतलब तो ये हुआ कि आज के बाद मुझे कभी भी सीखने का मौका नहीं मिलेगा. आई मस्ट स्टॉप हियर. दिस मीन्स दैट नाउ आई मस्ट स्टॉप हियर लर्निंग द लैंग्वेज. कि ये जो लैंग्वेज है ये सीखना मुझे यही बंद करना पड़ेगा. ओह हाउ सॉरी आई वॉज नॉट फॉर लर्निंग माई लेसन्स. एंड नाउ he was feeling sorry, he was regretting for not learning his lessons. आज उसे दुख हो रहा कि मैंने पढ़ाई क्यों नहीं की. For seeking birds eggs or going sliding on the sar. Because जैसे आज वो स्कूल नहीं आना चाहता था, ऐसे क्या था, a number of time he missed the school. कई बार कहाँ गया, he went in search of egg. कई बार egg ढूंढने चला गया. A number of time he just go and read the sliding. means स्लाइडर होता उस पर जाके पिकनिक मना रहा, दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा है. तो कह रहा आज मैं दुखी हो रहा था, मैंने ये सब क्यों किया, मैंने पढ़ाई क्यों नहीं करी.
My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends now that I couldn't give up. So now his attitude towards books was completely changed. बुक के प्रति उसका एटीट्यूड चेंज हो गया। तो कहता जस्ट अ लिटिल वाइल अगो दीज बुक्स सीम्ड टू हिम सच अ नॉइसेंस सो हैवी टू कैरी। कुछ देर पहले तक जो बुक्स उसे अननेसेसरी बर्डन लग रहा था, जो बुक्स उसे प्रॉब्लमेटिक लग रहा था, नाउ सडनली इट सीम्ड टू हिम एज इफ दैट दोज बुक्स जस्ट लाइक हिज ओल्ड फ्रेंड्स, कि ये बुक बर्डन नहीं है, ये प्रॉब्लमेटिक नहीं है, ये तो उसके पुराने दोस्त हैं, ये ऐसे पुराने दोस्त हैं टू हुम ही कुडंट गिव अप, जिसको छोड़ नहीं सकता है। जैसे आपके पुराने दोस्त होते कि आप छोड़ देते हैं। आपके पेरेंट्स कभी कभी आपसे बोलते हैं वो लड़का सही नहीं है, उसके साथ मत दिखना, तो घर पे तो बोल देते हैं हाँ पापा हम उसके साथ नहीं रहते हैं, लेकिन जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं उसी से मिलते हैं, उसी के साथ हाथ में हाथ डाल के घूमते हैं, क्योंकि ईजी नहीं होता है कि हम अपने पुराने दोस्तों को छोड़ें। तो आज फ्रेंच को भी ऐसा ही लग रहा था कि ये बुक्स प्रॉब्लमेटिक नहीं हैं, ये बुक्स अननेसेसरी बर्डन नहीं हैं, ये तो एक ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको वो नहीं छोड़ सकता है। एंड एम हैमिल टू not only his attitude was changed towards book but attitude is also changed towards his teacher। जैसे नहीं कभी कभी कोई बहुत स्ट्रिक्ट टीचर होता, बहुत मारता, तो लगता है ये सर तो चले ही जाए, अभी तक उसे भी ऐसा ही लगता था। But as soon as he came to know that it was his last French lesson, now his attitude towards books as well as towards M. Hamel was changed। उसका attitude पूरी तरीके से चेंज हो गया और उसे लगा मैं M. Hamel को भी नहीं छोड़ सकता हूँ। The idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was। Means as soon as this came into my mind that now M. Hamel was going, now I would not meet him again, कि आज वो यहाँ से चले जाएंगे, आज के बाद मैं उनसे कभी नहीं मिल पाऊँगा। I forgot all about his ruler, मैं भूल गया रूलर मतलब कितना डंडा उन्होंने मारा था, कितनी मेरी पिटाई की थी। I forgot all about his crankiness, मैं भूल गया कितना क्रैंकी थे, क्रेजी कितना सनकी थे, बहुत मारते थे, बहुत गुस्सा करते थे, बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, सारी चीज़ें भूल गया। मुझे लगा मैं इन्हें नहीं छोड़ सकता। Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes। So now he understood all the things, उसे सब कुछ समझ में भी आ गया था क्यों है, तो उसे लगा poor man, here poor man stands for M. Hamel, अब बेचारा। अब उसे समझ में आ गया सर ने ऐसे कपड़े पहन क्यों रखे हैं। सो ही अंडरस्टूड दैट M. Hamel wore this beautiful green dress just to give the respect to his last French lesson। अपने लास्ट फ्रेंच लेसन को रिस्पेक्ट देने के लिए उन्होंने फाइन संडे क्लॉथ्स पहन रखे। और संडे क्लॉथ क्यों लिखा है, अच्छे कपड़े थे तो संडे क्लॉथ हो गए क्या? नो, संडे इसलिए क्योंकि आप क्रिश्चियंस क्या करते हैं, संडे को चर्च जाते हैं और अच्छे कपड़े पहन के जाते हैं, तो M. Hamel चर्च पहन के यही हर संडे को जाते होंगे। तो उसे समझ में आ गया कि ये संडे वाला जो अच्छा यूनिफॉर्म है उन्होंने इसलिए पहन रखा है क्योंकि वो इस लास्ट लेसन को रिस्पेक्ट देना चाह रहे हैं। And now I understood why the old man of the village were sitting there in the back of the room। And now he understood why the villagers were present over there, कि गांव वाले क्यों आए थे वो भी उसे समझ में आ गया। It was because they were sorry too, समझ गया गांव वाले इसलिए आए हैं क्योंकि वो लोग भी सॉरी फील कर रहे हैं, वो लोग भी दुखी हैं। That they had not gone to school more, वो दुखी इसलिए है क्योंकि अब वो स्कूल नहीं आ पाएंगे। स्कूल नहीं आने से मतलब उन्हें कौन सी लैंग्वेज आती होगी, फ्रेंच। अब स्कूल में कौन से पढ़ा जाएगी, जर्मन। तो अब वो स्कूल आके क्या करेंगे, उन्हें वो लैंग्वेज ही नहीं आती है। It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more। So he understood that the villagers has been present over there, गाँव वाले वहाँ पर इसलिए आए हुए हैं because it was their way to thank M. Hamel for its 40 years of faithful service। पिछले 40 सालों से M. Hamel उसी गांव में था, बहुत ही फेथफुली वहाँ के लोगों के बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो ये उन गांव वालों का थैंक यू कहने का तरीका था। एंड सेकेंड, इट वाज देयर वे टू शो देयर रिस्पेक्ट, गांव वाले अपना रिस्पेक्ट भी शो करने के लिए आए थे। किसको? टुवर्ड्स द कंट्री दैट वाज देयर्स नो मोर, उस देश के प्रति अपने रिस्पेक्ट को शो करने के लिए आए थे जो उनका नहीं रहने वाला था। मीन्स वो किसके प्रति? फ्रेंच को, फ्रांस के प्रति अपने रिस्पेक्ट को शो करने वाले थे कि कल से यहाँ से लैंग्वेज भी चेंज होने आनी थी, ये पूरा क्या बन जाना था, जर्मन बन जाना था, इसलिए गाँव वाले वहाँ पर आए थे। तो कहता while I was thinking of all this I heard my name called। तो कहता जब मैं ये सब सोच रहा था then I heard my name called, कहता मैंने सुना मेरा नाम बुलाया गया। सुना क्यों? क्योंकि जब कभी कभी नहीं होता when I was in deep thought, बहुत सोच में होते एकदम से कोई नाम बुलाता तो एकदम से लगता हाँ कौन है,
तो यही उसके साथ हुआ, उसने सुना जैसे उसका नाम बुलाया गया है। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, एक्चुअली इट वॉज हिज ओन टर्न टू रिसाइट। और क्या याद करने को दिया था? पार्टिसिपल। यस, तो ये उसका नंबर था कि आज उसे पार्टिसिपल के रूल सुनाना था। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through very loud and clear and without one mistake। और कभी कभी कुछ कोई कह देता है और जब बात यहाँ लगती है तो इमोशनली जब हर्ट होते लगता है हम करके ही मानेंगे। तो आज वो इमोशनली हर्ट था, तो जैसे ही उसका नंबर आया तो उसने सोचा दैट टुडे ही वुड टेल द रूल ऑफ पार्टिसिपल विदाउट एनी मिस्टेक, जस्ट इन अ क्लियर एंड लाउड टोन, कि आज बिना किसी गलती के बिल्कुल क्लियर बहुत तेज़ आवाज़ में मैं पार्टिसिपल का रूल सुना के ही रहूँगा। लेकिन सुनाने के लिए याद भी तो होना चाहिए, याद उसे था नहीं था, तो यही हुआ। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, लेकिन पहले ही वर्ड केवल इतना ही बोल पाया, पार्टिसिपल इज द, एंड आफ्टर दैट मिक्सअप कर गया, भूल गया। भूल क्या गया? याद ही नहीं था तो क्या बताता। एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप। एंड नाउ आई विच द डे व्हेन यू आर फीलिंग असेम, जब शर्म आती है तो आप नज़र ऊपर नहीं कर पाते, तो यही था बेचारा क्या कर रहा था, आप शर्मिंदगी फील कर रहा था, तो नज़र नीचे झुका के डेस्क पकड़ के चुपचाप खड़ा था। माई हार्ट बीटिंग मीन्स वन जनरेटर वॉज गोइंग ऑन देयर, यहाँ पे भी धक 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 कि अब डांट पड़ी अब पिटाई होगी, तो डरा हुआ भी बहुत था। आई हर्ड एम हैमिल से टू मी, वो फिर कहता, मैंने फिर सुना एम हैमिल ने मुझसे कहा, आई वुडंट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंड्स डोंट वरी, टुडे आई एम नॉट गोइंग टू स्कोल्ड यू, मैं आज आपको डांटूंगा नहीं। क्यों नहीं डांटूंगा? फ्रेंड्स यू मस्ट फील बैड इनफ, क्योंकि मुझे पता तुम्हें पहले ही बहुत बुरा लग रहा है। जब आप कोई मिस्टेक कर देते हैं और आपको उसका पछतावा होता तो सामने वाला कभी कभी आपको पनिश नहीं करता है। तो यही उन्होंने कहा, आज मैं आपको डांटूंगा नहीं क्योंकि मुझे पता है आप बुरा फील कर रहे हैं। सी हाउ इट इज़, लेकिन आज ये ज़रूर बताऊंगा कि ये सब हुआ कैसे है। एवरी डे वी हैव सेड टू आवरसेल्फ, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, आई विल लर्न इट टुमारो। होता है ना कि अगर एग्ज़ाम में आपको 10 दिन का गैप मिल जाए तो 10 दिन पढ़ाई करते हैं, शुरू का 1-2 दिन, आप 5-6 दिन तो कल करके ही निकल जाते हैं। तो यही कहा कि आज टुडे इट इज़ योर लास्ट लेसन ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज बट स्टिल यू डिडंट नो हाउ टू रीड एंड राइट। तो ये क्यों हुआ? उसका रीज़न ये है, एवरी डे यू ऑल सेट टू योर सेल्फ, डेली आप सब अपने आप से क्या कहते थे, अरे अभी जैसे आप लोग अभी तो 12th शुरू हुआ है, एग्ज़ाम तो वहाँ जाके मार्च में होंगे, ही पढ़ लेंगे कल, यही तो होता है। कहते यही आप लोगों ने कहा, डेली आप लोगों ने अपने आप से क्या कहा है, आई हैव अ प्लेंटी ऑफ टाइम, अभी तो बहुत टाइम है, आई विल लर्न इट टुमारो, कल पढ़ेंगे। और कल करते करते देखिए आप कहाँ पर आ गए हैं। एंड नाउ यू से वेयर यू हैव कम आउट, और अब देख लो हम लोग कहाँ पर खड़े हुए हैं। दैट इज़ द ग्रेट ट्रबल विथ LCS। और ये केवल तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज़ द ग्रेट ट्रबल विथ LCS, पूरे LCS की प्रॉब्लम, ये सब की प्रॉब्लम है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो। और यार शी क्यों आ गया? मदरलैंड के लिए हम क्या, इंडिया के लिए सी यूज करते हैं, ऐसी LCS उनके लिए। तो उन्होंने कहा कि जितने भी LCS के लोग हैं, उन्होंने जितने भी स्टूडेंट्स थे, उनके साथ प्रॉब्लम क्या थी, उन्होंने लर्निंग को कब पर रख दिया था, कल पर छोड़ दिया था, इसलिए ये कंडीशन है। Now those fellows out there will have the right to say to you. Now those fellows out there means Germans. Today you have given a special right to the Germans. आज आपने जर्मन्स को एक राइट दे दिया है और वो आपसे क्या कहेंगे, How is it you pretend to be a Frenchman yet you can neither speak nor write your own language। क्योंकि जब आप उनसे कहेंगे हम फ्रांसीसी हैं और वो कहेंगे अच्छा फ्रांसीसी बोलिए, आप फ्रांसीसी लिखिए, आप लिख नहीं पाएंगे, फ्रांसीसी पढ़ नहीं पाएंगे, तो आपसे क्या कहेंगे, यू आर नॉट अ फ्रेंच मैन, आप फ्रांसीसी नहीं हैं, यू आर प्रिटेंडिंग टू बी अ फ्रेंच मैन, आप फ्रांसीसी होने का बहाना कर रहे हैं। ये अधिकार आज आप लोगों ने उन्हें दे दिया है। बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, लेकिन पुअर फ्रेंच केवल ये साहब सबसे बुरे तुम ही नहीं हो, तुम्हारी इसमें गलती नहीं है। वी ऑल हैव टू ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ, इस मीन्स वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, हम सब रिस्पॉन्सिबल हैं, केवल तुम्हारी सोता, केवल इसमें स्टूडेंट की गलती नहीं है, हम सब की गलती है। बस स्टूडेंट्स की गलती ये है कि उन्होंने पढ़ाई को कब पर टाल दिया, कल पर टाल दिया है। आपकी गलती, उसके बाद आपके पेरेंट्स की गलती, योर पेरेंट्स वर नॉट एनएक्सियस एनफ टू हैव यू लर्न। जैसे आपके पेरेंट्स आपसे कहते हैं ठीक है पढ़ना हो तो पढ़ लो, नहीं कुछ और करा देंगे, जिस दिन ये कह देंगे 50% बच्चे पढ़ाई बंद कर देंगे, तो यही वहाँ पर था। कहता योर पेरेंट्स वर नॉट ईगर एनफ टू सेंड यू स्कूल, आपके पेरेंट्स आपको स्कूल भेजने के इच्छुक ही नहीं थे। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स, वो क्या चाहते थे, आप कहीं फैक्ट्री में काम करें, कहीं मिल में काम करें, सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, जिससे कि पैसा कमा के लाएं।
पहला गलती आपकी क्योंकि आपने पढ़ाई कल पर छोड़ी, दूसरी गलती आपके पेरेंट्स क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे आप स्कूल जाएं। वो क्या चाहते थे, आप किसी फैक्ट्री में जाके काम करें और पैसा कमा के लाएं। तो पहली गलती आपकी, दूसरी गलती आपके पेरेंट्स की, और तीसरी उससे ये नहीं कहा केवल आपकी गलती, आपके पेरेंट्स की गलती। देन ही ब्लेम टू हिमसेल्फ ऑल्सो एंड देन आई, मेरी गलती भी है। और मेरी गलती क्या है, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मैं अपने आप को भी ब्लेम करता हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, बिकॉज अ नंबर ऑफ टाइम इट हैपन्स दैट इन प्लेस ऑफ टीचिंग यू, पढ़ाने की जगह मैंने क्या कहा, क्या किया, आई आस्क्ड यू टू वाटर माई प्लांट्स, मैंने कहा आज जाओ मेरे जो गार्डन में पौधे लगाए हैं उनको पानी डालो। शायद मैंने उसी दिन पढ़ा दिया होता तब तुम्हें आता, लेकिन मैंने भी नहीं पढ़ाया, कई बार मैंने तुमसे पौधों में पानी डलवाया। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब भी मेरा फिशिंग करने का मन हुआ, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, तो मैंने आपको छुट्टी भी दी है। तो शायद इसी वजह से क्या है, आप लोग क्या है, आप लोग पढ़ना नहीं सीख पाए, तो शायद कहीं ना कहीं मैं भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो उसने कहा हम तीनों ने मिल के गलती करी है। आपकी गलती ये है कि आपने क्या किया है, पढ़ाई कल पर छोड़ी। आपके पेरेंट्स की गलती क्या कि वो चाहते ही नहीं थे आप पढ़ें। और मेरी गलती क्या है, कई बार मैंने पढ़ाने की जगह आपसे काम करवाया। Then from one thing to another, M. Hamel went on to talk of the French language. So then from one thing, in this way he discussed on different things. एक एक करके बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कशन किया, and ultimately the discussion has been started on French language. और जो डिस्कशन था वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में शुरू हुआ। और फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या कहा, that it was the most beautiful लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। उसने कहा जो फ्रेंच लैंग्वेज है संसार की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है। द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, नॉट ओनली इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल बट इट इज़ द मोस्ट क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, बल्कि ये संसार के सबसे खूबसूरत, सबसे लॉजिकल और सबसे ज़्यादा क्लियर लैंग्वेज है। एंड दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट। एंड आफ्टर दैट ही अपील टू द पीपल दैट वी मस्ट गार्ड इट, वी मस्ट प्रोटेक्ट इट। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करें, इसे कभी भूलें ना। क्यों ना भूलें, बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज़ एज इफ दे हैव टू के देयर प्रेजेंट। क्योंकि ऐसा होता है कि जब तक जिस व्यक्ति के पास, सपोज अ पर्सन हैज़ बीन एनस्लेव्ड, एक व्यक्ति को गुलाम बना लिया गया, और जब तक उस व्यक्ति के पास उसकी लैंग्वेज है तो ऐसा लगता है उस व्यक्ति के पास उसकी स्वतंत्रता की चाबी है। लैंग्वेज कैसे स्वतंत्रता की चाबी हो सकती है, जो ऑथर कह रहा है। जैसे मैं सिंपल सा एग्जांपल दे दूं, जैसे इंडियंस वर एनस्लेव्ड बाय द ब्रिटिशर्स, हम इंडियंस को ब्रिटिशर्स ने एनस्लेव कर लिया, ठीक है। हम इंडियंस क्या करते, अपनी लैंग्वेज भूल जाते। अगर हम अपनी लैंग्वेज भूल जाते तो क्या हम बोलना बंद कर देते, हम कोई दूसरी लैंग्वेज अडॉप्ट करते। और जब हम ब्रिटिशर्स के साथ रह रहे होते तो कौन सी लैंग्वेज अडॉप्ट करते, ब्रिटिशर्स की लैंग्वेज अडॉप्ट कर लेते। जब हमारी लैंग्वेज उनके जैसी हो जाती फिर हम उनका एक कल्चर अडॉप्ट करते, उनका ट्रेडिशन अडॉप्ट करते, और कुछ दिन बाद हम भी वही लैंग्वेज बोलते जो वो बोलते। हमारा कल्चर भी वैसे ही होता जैसा उनका होता। तो हमें कभी ये लगता ही नहीं हम उनसे अलग हैं। और जब हमें ये लगता ही नहीं कि हम इनसे अलग हैं, इन्होंने हमें गुलाम बना के रखा है, तो हम शायद कभी अपनी फ्रीडम के लिए स्ट्रगल ना करते। और अगर हम फ्रीडम के लिए स्ट्रगल ना करते तो हमें कभी ये फ्रीडम मिलती नहीं। तो हमें क्या बता रहा था कि हम उनसे अलग हैं, सिंपल सा हमारी जो लैंग्वेज थी, बिकॉज लैंग्वेज इज़ द आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन। तो ऑथर यही कहता है कि अगर एक व्यक्ति को गुलाम बना लिया जाता है, जब तक उसके पास उसकी लैंग्वेज है तो ऐसा लगता है कि उसके पास उसकी स्वतंत्रता की चाबी है। तो यहाँ तक आप टिक कर लीजिए, इसके बाद हम लोग कल डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप लोग 2-3 क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, ये लिख लीजिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे। क्या उसे प्रिपेयर करके आना था, सिंपली है, फ्रेंच वॉज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद द स्कूल दैट डे द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल, इतना सा सिंपल है। व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। उस दिन स्कूल के बारे में अनयूजुअल मीन्स अलग उसे क्या दिखा। पहला क्या था, द ड्रेसिंग सेंस ऑफ एम हेमिल। दूसरा क्या था, द एटमोसफियर ऑफ द क्लासरूम देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस। और थर्ड क्या था, द प्रेजेंस ऑफ विलेजर्स। ये तीनों चीज़ें आप इसमें लिख दीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड नोटिस बोर्ड पर क्या लिखा हुआ था। तो क्या लिखा था, व्हाट हैड बीन पुट अप द नोटिस विच हैज़ बीन कम फ्रॉम बर्लिन। जो बर्लिन से नोटिस आया था वो लगा था, और नोटिस पे क्या था, दैट फ्रॉम नेक्स्ट डे इन ऑल द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लोरेन ओनली जर्मन लैंग्वेज वुड बी टॉट, केवल ये लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। इसके बाद व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे। ये थोड़ा ब्रॉड में हो जाएगा, इसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो आज आप लोग ये तीनों क्वेश्चन लिख के याद कर लीजिएगा, इतना चैप्टर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम लोग कल करेंगे, कल ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।